आज ट्रिप का दूसरा दिन है। हम सभी तैयार होकर होटल के बाहर लॉबी में बैठे हैं। हम सभी निन बिन टैमकॉक जाने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे व्हीकल का इंतजार। It's 7:30 in the morning. We have started from our hotel Golden Silk Hanoi to Tamcock. Hanoi is the capital of Vietnam and it's a beautiful city. The maximum people are moving on mobile. In fact, 80% of population of Vietnam moves on motorcycle or mobile, two-wheeler. There is a separate lane you can see here for the motorbikes only. There wherein no other four-wheelers are allowed, and similarly motorcycles are also not allowed to move in the lane of four-wheelers. It's a good system, beautiful city. Tam Canal is in Ninh Binh area of Vietnam and is 103 kilometers away. We are moving towards Tam Canal. Good weather and very good roads. So we are enjoying the trip. Everyone in the vehicle are very much enjoying the trip and are eager to reach Tamcock fast. Our tour guide Hip Hop today is a very good guide explaining us everything about the Vietnam and its culture. Like other many type of cultivation and culture like fisheries, honeybee, honey production, silk production, Vietnam is also famous for the bamboo production. We will visit a factory which is famous for bamboo production and its allied products. We have visited a factory which has lot of products as a byproduct of bamboo, wherein beautiful t-shirts, cloths, towels, even toothpaste made out of the carbon of bamboos, etc. were displayed, and we enjoyed it a lot. So we spent about 1 hour in this factory. We have seen all the products and purchased many of them also as a souvenir to India. At the side wall they are displaying various sightseeing projects. Now we have reached to the Tamcock, and Tamcock is a canal in the Ninh Binh area, and this canal is in fact surrounded by beautiful coral mountain. So these coral mountain and a canal through this in between this mountain is really beautiful and most enjoyable. Our tour guide Hip Hop has gone to arrange the boat ride tickets for us, and we all have gathered at this side. Now we are ready by wearing the life jackets to be able to ride in the boats through the canal. It will be around 1.5 hour ride one side. So the really Vietnamese people,
They work very hard to entertain their tourists, and mostly the ladies and girls participate in rowing this boat in the canal. The view of canal is very beautiful. The lady sailor of our boat is preparing herself to sail in the canal. We have started now in the canal and moving ahead. Our boat is moving ahead slowly, slowly. The view all around is beautiful. It's a very, very soothing trip, most entertaining, giving a sort of nourishment. The natural beauty is giving a sort of nourishment to our mind. Beautiful view, both sides. We are enjoying, and it's really worth memorable trip of our life. This canal is now getting narrower and we are moving ahead. The view both sides is very beautiful. Coral mountains gives, and it has, this particular canal has many adventurous spots, beautiful spots. We will move beneath the mountains through a very, very narrow space, which is very good, very enjoyable, and a something different, lifetime watching place. हम धीरे धीरे कैनाल में आगे बढ़ रहे हैं। सामने से लोग आ रहे हैं और इनके चेहरे इतने खिले हुए हैं तो लग रहा है कि इन्होंने बहुत ही एंजॉय किया है इस कैनाल में। बहुत ही सुंदर नज़ारा, चारों तरफ पहाड़ियों का, बीच में ब्यूटीफुल कैनाल, ग्रीनरी और साथ साथ लाइमस्टोन के पहाड़। तो हम इस राइड को बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं और सभी के चेहरे खिले हुए हैं, स्माइल आ रखी है। नाउ आवर लेडी बोट सेलर इज रोइंग थ्रू हर लेक। माय गॉड, रियली वेरी हार्ड लाइफ। अभी तक हम सिर्फ आगे ही बढ़ रहे हैं। तकरीबन 25-30 मिनट हो चुका है, आगे बढ़ते ही जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा एंजॉय फील कर रहे हैं। सामने एक छोटा सा कलवर्ट है, कलवर्ट टाइप पुलिया इसको कहेंगे, छोटा ब्रिज। तो इसको हमने अभी क्रॉस कर लिया है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। मैनी मोर एडवेंचर्स आर येट टू कम, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एडवेंचर्स will be coming our way now। मुझे लगता है कि ये जो रिवर नहीं, ये कनाल में जो बोट राइड होती है ये अर्ली इन द मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि कई लोग वापस भी आ रहे हैं और इन सभी के चेहरे काफ़ी खिले हुए हैं। So they must have enjoyed। वाह, क्या व्यू है सामने का, गजब, प्रकृति का नज़ारा, सूदिंग एयर, वेरी गुड टेम्परेचर, वेदर आउटसाइड सराउंडिंग अस। तो इस रिवर कनाल की राइड का
मज़ा आ गया है। मैंने पहले गलत बताया था, ये एक्चुअली लाइमस्टोन हिल्स है, नॉट मुंगे। मुंगा नहीं है, ये लाइमस्टोन हिल्स है। तो सब तरफ, क्योंकि यहाँ पर लाइमस्टोन काफ़ी मिलता है वियतनाम में, और इसीलिए आसपास की एरिया में सीमेंट की फैक्ट्रियाँ भी काफ़ी है, बिकॉज लाइमस्टोन इज़ वन ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट एज वेल एज। वियतनाम का लाइमस्टोन से ही कंप्रेस हो करके और जो मार्बल एंड वो बनते हैं, तो वियतनाम मार्बल बहुत फेमस है इसी वजह से। और अब हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया नज़ारा एक के बाद एक आ रहा है, मोस्ट एन्जॉयबल, काफ़ी सुंदर है, ब्यूटीफुल राइड। ऐसी राइड हमने इस तरह की इन ए पर्सनलाइज्ड काम वेदर, काम एटमॉस्फेयर में पहले कभी नहीं की। ब्यूटीफुल। सभी यहाँ बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, लगता है कि उन्होंने काफ़ी एंजॉय किया है। लोग बाग अलग अलग पोज में अपने अपने फोटोज दे रहे हैं। गजब की पहाड़ियाँ, गजब का सामने का व्यू, लॉन्ग कनाल, लॉन्ग एंड ऑफ वाह माई लेडी सेलर, हाउ हार्ड वर्किंग इज सी and how fast she is sailing the boat. My God. Hats off to them. Hats off to the Vietnamese for their hard work. हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी लोग वापस भी आ रहे हैं। सामने में ये लगता है एक साइड में इन्होंने कोई छोटी सी जगह का जो प्लेन जगह इनको मिली, तो कुछ डेवलप करने की चेष्टा की है। मे बी सम सॉर्ट्स ऑफ ए हॉल्ट फॉर द टूरिस्ट। तो ये भी एक अच्छी जगह है, इन्होंने स्पेशली बनाया है। और कुछ एक छोटा हट है, क्या जिसका है ये पता नहीं है, मगर ठीक है। अब हम इसको क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं। हम अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो बोट की स्पीड है काफ़ी अच्छी है, इन्होंने मैनुअली ड्रिवन, और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओह माय गॉड, ये क्या है सामने? लगता है नहर आगे ब्लॉक हो गई है क्या? आगे जाने का लगता है रास्ता नहीं है अब आगे। माय गॉड, आगे सामने पहुंचने पर ही पता चलेगा। ओ सभी इस लगता है ये पहाड़ कनाल जो है इस पहाड़ के नीचे से गुजर रही है, और ये बोट भी इस पहाड़ के नीचे से लेके जा रहे हैं। वेरी वेरी नैरो स्पेस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओह माय गॉड। ओह, कुछ लोग आ भी रहे हैं वापस और कुछ अभी जा रहे हैं। हम बस अब इसके नीचे घुसने ही वाले हैं। वाह, जबरदस्त एक्सपीरियंस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। क्या गजब का पहाड़ है। ओह माय गॉड, हम अब बिल्कुल इस पहाड़ के नीचे घुसने वाले हैं। जगह तो बिल्कुल ही नहीं लग रही है।
ये तो बिल्कुल नैरो स्पेस है, माय गॉड। सर बचा करके घुसना पड़ेगा क्या? बट दिस लेडी सेलर इज, ओ माय गॉड। जो सीलिंग है पहाड़ की, हम हाथ बढ़ाकर छू सकते हैं। एंड फ्यू ऑफ द रॉक्स इज लाइकली टू टच आवर हेड। ओ माय गॉड, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। क्या ज़बरदस्त नज़ारा है, इतने नैरो स्पेस के नीचे से गुजरना पहाड़ के। ओ हमारे बंधु लोग लगता है ओवरटेक करके आगे आ गए हैं, हमसे काफ़ी पीछे थे। वाह, ब्यूटीफुल नज़ारा, गजब, मोस्ट एंजॉयबल। इतने छोटे से पहाड़ के नीचे से, इतने छोटी सी स्पेस से गुजरने का एक अलग ही अंदाज है, एक अलग ही एक्सपीरियंस है, अनुभव है। सामने जैसे कि वो जिसको कहते हैं ए लाइट इन द टनल, तो सामने बाहर अब हम लगता है निकलने वाले हैं और बाहर का नज़ारा, बाहर की रोशनी अंदर आ रही है। ए लाइट इन द टनल, ओह ब्यूटीफुल नज़ारा, गजब गजब का एक्सपीरियंस। वाह, वियतनाम में इन्होंने अच्छे ढंग से टूरिस्ट स्पॉट बनाए हैं। एंड पहाड़ियों की रचना देखो, प्राकृतिक तौर पर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अब हम ऑलमोस्ट बाहर ही निकलने वाले हैं, बाहर। हा, अब हम बाहर निकल गए हैं। इसको क्या कहेंगे, केव, गुफा या वाटर वाली गुफा? वेरी इंटरेस्टिंग, गजब, ब्यूटीफुल। हमारे दूसरे बंधु, अब लगता है कि सब हमारे को ओवरटेक करके आगे निकलने के फिराक में हैं और इसीलिए ये लोग आगे जा रहे हैं। हा, क्या इशारा किया है कि देखो हम आगे बढ़ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। यू आर,
आप लोग लकी हो, आपका जो सेलर है वो कंपैरेटिवली यंग है और एनर्जेटिक है, काफ़ी स्पीड में बढ़ा रहा है। बगल का व्यू, इसमें इस नहर में मैंने देखा कई जगह कमल के फूल, वियतनामी प्रजाति के कमल के फूल भी खिले हुए हैं। ये लगता है कमल के ही पत्ते हैं और कहीं कहीं फूल दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम आगे, ओ माय गॉड, द एरियल व्यू ऑफ टैमकॉक कनाल, सो ब्यूटिफुल, बोथ साइड गोल्डन पैडी फील्ड। यहाँ एक खास प्रजाति के पैडी होती है जिसको कि गोल्डन पैडी बोलते हैं और वो इस टैमकॉक इलाके में ही होती है। इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। हम अब और आगे बढ़ रहे हैं टैमकॉक कैनाल के इलाके में। हमने एक केव जो अभी हम पिछली बार क्रॉस कर चुके हैं, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, एंजॉयबल एज वेल एज हॉरिफाइंग टू। और वैसी ही 2 केव अभी और आगे आने वाली है। उसमें एक तो बिल्कुल ही हमारे सर को टच करेगी, हम जो कि और भी नीची है, बहुत ही संभल कर सावधानी पूर्वक उसमें बढ़ना होगा। और अब हम दूसरी केव के पास भी पहुंच रहे हैं। आहा, ये देखो, ये दूसरी केव के नीचे भी पहुंच चुके हैं। ये कंपैरेटिवली छोटी है मगर कुछ ज़्यादा ही नीचे। ओ माय गॉड, इससे तो सर बचाना मुश्किल है। ओ हो, बिल्कुल सर झुका के बचाते हुए चलो। लेकिन हमारी जो सेलर है, जो बोट को रोइंग कर रही है, वो बड़े आराम से चली जा रही है। ओ माय गॉड, लगता है इसमें से पानी भी टपक रहा है। फिल्टर्ड वाटर थ्रू लाइमस्टोन हिल्स। वाह, क्या आहा, पानी टपका 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 टपका। वो ये तो एकदम ही नीचे है। बिल्कुल, अब हम बाहर निकल रहे हैं। आहा, इतनी नीची केव, इसमें से निकालना बड़ा मुश्किल काम था। ओ, लगता है सामने एक और केव दिखाई दे रही है। लगता है दूसरी केव भी बिल्कुल बगल में ही है। यही है, ये रही दूसरी केव। ये दूसरी केव भी अब हमारे पास आ रही है। ओ, बिल्कुल 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 पास आ रही है। चारों तरफ का नज़ारा बहुत अच्छा है। सुना है ये दूसरी केव काफ़ी नीची है और भी नीची लग रही है। पता नहीं, जाने से पता चलेगा। ओ, मगर चौड़ी काफ़ी है और बीच बीच में पानी में से भी पहाड़ियाँ छोटी छोटी। इट्स नॉट पहाड़ी बट इट्स ए टाइप ऑफ रॉक। हा, अब हम ये तीसरी केव
तीसरी केव के भी काफ़ी नज़दीक आ गए हैं और इन couple of seconds, oh, we are just entering. Yes, we have entered in. Oh my god, ये तो और भी नीचे लाग रही है। बहुत संभल के जाना पड़ता है। इनको मालूम है, ये जो सेलर हैं हमारे बोट के, इनको पता है कि किस जगह से निकालना है, बड़े ही टैक्टफुल ढंग से, तो इनका दिन भर का काम है। एवरी डे ये मैंने पूछा था इनसे, ये तकरीबन दिन में 3 ट्रिप कर लेते हैं, उसके बाद में फिर इनको एनर्जी नहीं रहती। तो ये केव बिल्कुल हमारे सर को छूती हुई निकल रही है और साइड में तो इनफैक्ट बिल्कुल बोट शायद फंस ही जाए इसमें। बीच बीच में ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, अच्छा यहाँ पर बड़ा ही सुंदर स्ट्रक्चर अंदर में नेचुरली बना हुआ है। इट्स ए नेचुरल स्ट्रक्चर, इट्स ए नेचुरल लेक। क्या पहाड़ियों के बीच में, मगर मुझे लगता है कि ये शायद ये नेचुरल नहीं है, क्योंकि दोनों साइड में जो साइज है बिल्कुल बराबर की बनी हुई है, बट वेरी लॉन्ग। इट्स इसको कवर करने में मैंने जो पता किया कि एक साइड में 1.5 आवर लगता है। तो इनफैक्ट जाना और आना इस लेक में मिलाकर 3 आवर्स के आसपास लगता है। अब हम इसके बाद वापस घूम रहे हैं और इसी रूट से, जिस रूट से आए थे उसी रूट को फॉलो करते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे और वापस किनारे की तरफ लौटेंगे। तकरीबन 1.5 आवर की जर्नी हमने की है यहाँ पर। इसको जर्नी नहीं करके हमको एक तरह से वॉयज ही कहना पड़ेगा, बट और अब हम वापस लौट रहे हैं यहाँ पर। उन्हीं सब केव्स से वापस होते हुए जाएंगे। हमारे आगे हमारे बंधु जा रहे हैं और ठीक है, इट्स ए वेरी वेरी मेमोरेबल ट्रिप। मज़ा आया, एक अच्छा लाइफ एक्सपीरियंस लेके हम वापस जाएंगे इंडिया में। वियतनाम में काफ़ी अच्छी जगहें हैं घूमने की। हम इसके बाद अब हमारा ट्रिप हनोई वापस जाएंगे। हनोई से फिर हम शाम को फ़्लाइट पकड़ेंगे और दानांग जाएंगे। दानांग से होते हुए फिर हम, दानांग में काफ़ी जगह है, निन बिन है, अरे निन बिन तो हम है ही। दानांग में हम बाना हिल्स बोल करके तकरीबन 2 किलोमीटर अप द हिल, स्ट्रेट पहाड़ी की चढ़ाई है, मगर हमको नहीं चढ़नी है। वहाँ पर बहुत अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है और वो हम केबल कार से चढ़ेंगे। तो दैट अगेन विल बी अनदर बिग एडवेंचर। सो अब हम वापस लौट रहे हैं।
अब हम ऑलमोस्ट किनारे पर वापस पहुंचने वाले हैं। किनारे के स्ट्रक्चर्स वगैरह हमको दिखने लगे हैं। तो यहाँ पर जो बोट वगैरह खड़ी थी पहले से टूरिस्ट का इंतज़ार करे, वो बोट हमको दिखने लगी। साइड का स्ट्रक्चर, यह जो बिल्डिंग जो जाते समय हमने कवर नहीं किया था, तो वो भी अभी दिख रहा है। ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, अच्छा है काफ़ी। और दिस इज मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। अभी हम टैमकॉक के किनारे निन्न बिन्न की सड़कों पर हैं। और इनफैक्ट भूख काफ़ी लग गई है। हम जहाँ पर कोई इंडियन रेस्टोरेंट खोज रहे हैं जहाँ की हमको इंडियन फूड मिल जावे। तो ठीक है, अब हम यहीं पर ही इसको समाप्त करते हैं।